लास्ट टाइम हमने कुछ बेसिक बातें डिस्कस की थी अबाउट लीनियर रिग्रेशन विद मल्टीपल फीचर्स, राइट? क्यों जी, ऐसा ही था, राइट? सो वी टॉक्ड अबाउट वेक्टराइजेशन एंड द बेनिफिट्स ऑफ वेक्टराइजेशन. कोई सवाल है तो गो अहेड. जी, ये मीन स्क्वायर जो एरर होता है उसमें जो हम निकालते हैं प्रेडिक्टिव वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, तो कहीं भी ऐसा भी होता है कि एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टिव वैल्यू, तो दोनों जो फॉर्मूला सेम है. I think mathematically it shouldn't make any difference. It's just the way कि हम किसी चीज़ को स्टैंडर्ड वे में कैसे करते हैं. क्योंकि अगर आप दो चीज़ों का डिफरेंस लेके स्क्वायर कर रहे हैं तो a minus b और b minus a square should yield the same thing. But the way we do it is predicted minus actual, not actual minus predicted. और सर रेकमेंडेड सिस्टम जो है वो मशीन लर्निंग के अलग से टाइप तो नहीं है ना, वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टाइप है. Yeah, kind of yes, but like it's just that with the passage of time, people have started to talk about them as a specialized type of machine learning as such because of their own uniqueness or their own kind of aura. लेकिन आप गलत नहीं कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं. और दूसरी एक चीज और लाइक there can be trainability as well in some way. So it becomes a mixture of so many things then. क्योंकि हमारे तीन टाइप के आ रहे हैं, अनसुपरवाइज्ड, सुपरवाइज्ड और रीइंफोर्स्ड. Yeah, that's all right, but like no harm in calling recommender systems as a separate category in a way, because there is a kind of element of supervised learning somewhat in that as well. So let's call it a separate entity because of things that really center it now. We will talk about recommender systems actually, so we will get to know it better then. मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? अगर आप ये जो मीन स्क्वायर्ड एरर है, इसमें जहां आप स्क्वायर ले रहे हैं उसकी जगह एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, स्क्वायर की बजाय एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, तो दैट विल बिकम मीन एब्सोल्यूट एरर. और कोई सवाल? None. Okay. So now we will be talking about we talked about what is multiple linear regression. So when we have more than one features, we call it multiple linear regression, and for multiple linear regression ज़ाहिर है हमारे पास number of weights भी ज़्यादा हो जाते हैं. Then we talked about vectorization कि vectorization हमारे लिए चीज़ों को कैसे fast बना देती है, how like quick things really become for us, right? And having said that, this fan is not really a friendly fan. You know, I always increase the heat. School नहीं हो गया? Pen drop. Okay, but it turns out it adds a lot of noise to this recording as well. Okay, so now we will be talking about like gradient descent for multiple regression. The concept will still be the same. वही concept है gradient descent का, नया concept उसके अंदर नहीं आएगा. It's just that कि पहले जो चीज़ हम उसके लिए कर रहे थे, इसको भी ये और अच्छा उन पावर ही नहीं है, उनके breakers शायद काम हो गए. Okay. So we will be doing the same gradient descent, but now the parameters will be more, and accordingly the partial derivatives will grow, ज़्यादा हो जाएंगे. So let's get into it. जो पहले notation हम इस्तेमाल कर रहे थे, that was like
कि हमारे पास मिसाल के तौर पे जो पैरामीटर्स हैं दोनों लिस्टेड ही है, राइट, एंड द बी, और जो मॉडल हमने बना लिया था that was like w1 x1 plus so on so forth plus wn xs plus b, or cost function was a function of all these parameters w1 to wn and b, right, और gradient descent जो था that was simply updating the value of the or of every weight wj is equal to wj minus alpha times the partial derivative of the loss function cost function with respect to wj, and similarly b is equal to b minus alpha times the partial derivative of the cost function with respect to b, right? That was the weight update step that we were performing with it. अब हम क्या करते हैं कि हम इसको vectorized notation के अंदर ले जाते हैं, right? So we say that okay, instead of writing it like this, we say that okay, w is now a vector which contains all these values w1 to wn. So हम इसे एक numpy array के तौर पे represent कर सकते हैं. And if you remember, तो ये basically जो arrow हम लगाते हैं उसके ऊपर, इसका मतलब ये है कि हम स्केलर की बजाय एक वेक्टर की बात कर रहे हैं. It has multiple values in it. Similarly, b will still be a number. b तो एक ही वैल्यू है, b में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और जो आपकी लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन है वो बेसिकली अब बन जाएगी that it is a function of x where x is a vector involving parameters w and b, where w is also a vector, and that is basically dot product of the vectors w and x plus b, right? Okay. और जब हम इसके ऊपर ग्रेडियंट डिसेंट परफॉर्म करेंगे तो हम सिंपली वही वेक्टर नोटेशन इस्तेमाल कर रहे होंगे. इफ यू सी, तो यहाँ जो हमने इतने सारे पैरामीटर्स लिखे हुए थे हमने उनकी बजाय सिर्फ w with an arrow over it लिख दिया, और यहाँ पे भी w with an arrow over लिख दिया, और this is the partial derivative with respect to the weight and this is partial derivative with respect to b. One thing that you might know कि जब आप partial derivative calculate कर रहे होते हैं तो partial derivative like can somebody quickly tell कि एक normal derivative और एक partial derivative में क्या फर्क होता है? So we just use that vectorized notation and we know what does this vector really represent here. Now the question I was just trying to like focus on was, what is the difference between a normal derivative and a partial derivative? partial with respect to होता है किसी वेरिएबल के with respect to हम लेते हैं partial, और जो वैसे डेरिवेटिव होता है वो हम होल इक्वेशन के लिए लेते हैं. Okay, right. Partial? सर जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है हमारे पास, उसमें अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक वेरिएबल, तो जो हमारे पास बाकी रिमेनिंग वेरिएबल होते हैं उनको हम एज अ कांस्टेंट कंसीडर करते हैं. जो उनको कांस्टेंट कंसीडर करते हैं. बाकी जो सिंपल डेरिवेटिव है उसके अंदर अगर हम विद रिस्पेक्ट टू किसी स्पेसिफिक वेरिएबल के ले रहे हैं तो उसके अंदर बाकी जो मौजूद वेरिएबल होते हैं हमें उनको हम कांस्टेंट कंसीडर नहीं करते हैं, हमने उनका डेरिवेटिव भी लेना होता है. या सो बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर जो टर्म है आपके पास पूरी, जब आप कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू w, इसका मतलब है कि उस फंक्शन के अंदर जहां जहां w आ रहा है वो तो वेरिएबल के तौर पे कंसीडर होगा, उसका तो डेरिवेटिव लिया जाएगा. बाकी कहीं x है, y है और कोई b है या कुछ भी है वो कांस्टेंट तस्वर किए जाएंगे. डेरिवेटिव के में कह लें कि वो काइंड ऑफ इग्नोर हो जाएंगे. ठीक है. अगर आप विद रिस्पेक्ट टू b ले रहे हैं तो w वाली कोई भी टर्म कांस्टेंट समझी जाएगी, सिर्फ b वाली टर्म का डेरिवेटिव लिया जाएगा, राइट?
That's a very simple way of seeing what a partial derivative is. That's why we say partial derivative of the cost function with respect to w, j for example, or b. So it's different in those cases. Okay. So अब अगर आप gradient descent की बात करें तो हमारा जो एक फीचर के लिए gradient descent था उसमें अगर आपको याद हो तो हमारा डेरिवेटिव बनता था 1/m into this whole equation. यहाँ से हमने स्क्वायर उठा लिया था, राइट? और उठा के यहाँ ले आए थे और वो 1/2m में 2 से कैंसिल हो गया था, राइट? दूसरी चीज क्या कि इसमें चूंकि हम इसका जो डेरिवेटिव ले रहे थे विद रिस्पेक्ट टू w ले रहे थे तो सिर्फ ये वाली टर्म मैटर करती थी, ये वाली टर्म हम सिर्फ इस टर्म का डेरिवेटिव जो है वो कंसीडर कर रहे थे, राइट? सो इस टर्म में आपके पास लाइक जो कोएफिशिएंट है w का कह लें वो x है तो वो x आपके पास बाहर आ जाता है, राइट? और दैट्स लाइक द डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव. आमतौर पे ये जो आपके पास नोटेशन होती है, आई डोंट नो लाइक व्हाट वुड यू कॉल दिस सिंबल सिग्मा और व्हाट. सो दिस सिग्मा सिंबल इज बेसिकली देयर टू रिप्रेजेंट पार्शियल डेरिवेटिव. वैसे तो हम d/dx लिख देते हैं, d/dw या व्हाटएवर, but we use this symbol specifically to denote the partial derivative. So this is partial derivative of the cost function with respect to and similarly we have partial derivative of the cost function with respect to b as well, which is like this one. अच्छा, अब यही चीज जब आप ग्रेडियंट डिसेंट में देखेंगे, जब आपके पास नंबर ऑफ फीचर्स 2 या 2 से ज्यादा हो जाए, उस सूरत में आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव्स ज्यादा हो जाएंगे. जब आपके पास सिर्फ w और b था तो आपके पास 2 पार्शियल डेरिवेटिव थे, एक विद रिस्पेक्ट टू w और एक विद रिस्पेक्ट टू b. अब आपके पास w's अगर ज्यादा हो गए, फर्ज करें आपके पास 5 w's हैं और एक b है, तो पार्शियल डेरिवेटिव भी 6 होंगे with respect to w1, with respect to w2, with respect to w3 and so on so forth. So this is your derivative with respect to w1. आप weight update w1 की कैसे करेंगे? w1 is equal to w1 minus alpha times the partial derivative of the cost function with respect to w1. आपको पता है w1 के साथ कौन सा फीचर मल्टीप्लाई हो रहा होगा? x1. ये x1 बाहर आया हुआ है. w2 के केस में x2 बाहर आ जाएगा, w3 के केस में x3 बाहर आ जाएगा और wn के केस में xn बाहर आ जाएगा. बाकी b का डेरिवेटिव वही रहेगा जो पहले था, राइट? और पहले ये चीज आप सिर्फ इन दो के लिए करते थे, अब आप बेसिकली फॉर j इज इक्वल टू 1 to n, यानी जितने भी आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी आपके पास फीचर्स हैं, उन सब के अगेंस्ट एक एक वेट है, प्लस एक आपके पास b भी है. b हमेशा एक ही होता है, नो मैटर w's जितने मर्जी हो जाए, 1 हो या 10 हो या 100 हो, b हमेशा एक ही होता है. So this is the difference that we will exhibit in the gradient descent when we have more than one features. सर जी यहाँ पर भी लिखा हुआ था simultaneously update, किसका आपने मतलब बता दें? इसका अगेन मतलब ये है कि आप w1 जो है उसकी वैल्यू कंप्यूट करेंगे, एक टेम्पररी में स्टोर कर लेंगे. w2 की वैल्यू वेट अपडेट कंप्यूट करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे. सबकी जब एक बार आप स्टोर कर लेंगे उसके बाद आप उन्हें अपडेट करेंगे, राइट? यानी इसका मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि w1 की वेट अपडेट कर लिया और फिर जब w2 का करने गए तो उसके पार्शियल डेरिवेटिव में अपडेटेड वैल्यू ऑफ w1 इस्तेमाल कर ली. ऐसा नहीं करेंगे आप. ओके, अच्छा, अगेन जस्ट टू लाइक पुट इट इनटू अ सेंटेंस, हम ग्रेडियंट डिसेंट क्यों इस्तेमाल कर रहे थे? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट? कॉस्ट मिनिमाइज करना. टू मिनिमाइज द कॉस्ट. There can be a better sentence that you can say. Optimize. We want to learn the right values for w's and b's. हम पैरामीटर्स या वेट्स की ठीक वैल्यूज लर्न करना चाहते हैं. इसका ऑटोमेटिक मतलब ये है कि हम कॉस्ट फंक्शन भी मिनिमाइज कर रहे होंगे. w's और b's की वैल्यूज लर्न करने का मतलब ये है कि हम ऐसी वैल्यूज लर्न करना चाहते हैं जो कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं, राइट? सो यस, वी आर मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, बट द प्राइमरी व्हाई आर वी मिनिमाइजिंग द कॉस्ट? बिकॉज वी वांट टू लर्न द राइट काइंड ऑफ पैरामीटर्स, बिकॉज वी विल बी यूजिंग दोस पैरामीटर्स लेटर एज वेल, राइट? तो दोनों बातें इन अ वे एक ही चीज कम्युनिकेट करते हैं, राइट? ओके, अच्छा, अब ये जो पैरामीटर लर्निंग है
पैरामीटर आप अच्छे लर्न करेंगे तो इसका मतलब है कि आप अच्छा मॉडल बनाएंगे, आपका मॉडल बेहतर फिट होगा आपके डेटा के ऊपर। तो ये जो पैरामीटर लर्निंग है जिसके लिए हमने ये एल्गोरिदम बनाया ग्रेडियंट डिसेंट, इसके लिए हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। सो इफ आई टेल यू दैट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज लर्निंग मशीन लर्निंग बैक इन 2014, ऐसा तो नहीं कि तब ग्रेडियंट डिसेंट पैदा नहीं हुआ था, बट इट वाज नॉट कॉमन। People were not really talking about it. Deep learning के अभी इतने inroads नहीं थे. So linear regression तब भी था और उसके लिए हम एक method use किया करते थे that was called OLS, ordinary least squares, right? That was a closed form solution. By closed form solution कि वो उसके best answers निकाल के दे सकता था. लेकिन इसी तरीके से like here we are mentioning another method that is called normal equation, right? हम नॉर्मल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए भी लीनियर रिग्रेशन के पैरामीटर्स की वैल्यूज लर्न कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ग्रेडियंट डिसेंट के अलावा जो मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा स्केलेबल साबित नहीं होते। उनकी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी नॉर्मली इतनी होती है कि अगर नंबर ऑफ पैरामीटर्स ज़्यादा हो जाए, नंबर ऑफ फीचर्स ज़्यादा हो जाए तो फिर वो बिहेव नहीं कर पाते। द कंप्यूटेशंस बिकम्स quite difficult in that situation. एक और वजह ग्रेडियंट डिसेंट को तरजीह देने की ये भी है कि ग्रेडियंट डिसेंट एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसको सिर्फ लीनियर रिग्रेशन के लिए महदूद करके देखना जरूरी नहीं है। ये मशीन लर्निंग से रिलेटेड अक्सर प्रॉब्लम्स के अंदर वेट्स लर्निंग के लिए एक जनरल एल्गोरिदम के तौर पे अब इस्तेमाल किया जा सकता है। So we will shortly be seeing कि जब हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में भी हम किसी ग्रेडियंट डिसेंट को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो नॉर्मल इक्वेशन ऑन दी अदर हैंड अगर आप इस्तेमाल करें, वी हैवंट टॉक्ड अबाउट नॉर्मल इक्वेशन, हम करेंगे भी नहीं, right? Just to mention for the sake of completion that yes, there is another method, for example, using normal equations you can learn the same parameters, but that neither is scalable nor is generalizable to other problem situations, unlike gradient descent जो कि relatively scalable भी है और दूसरी situations के अंदर हमें serve भी करता है, right? So just to know that yes, there is another method, say for example normal equation. We are not going into the detail of that anyway. Okay, the next important concept that we talk about is feature scaling. And before talking about feature scaling, let's just revise what is a feature. Feature क्या होता है? For example, एरिया हो गया सर, एक रूल हो गया, मतलब फ्लोर जो आपने बताया था x1 x2 the inputs that you will be supplying to your machine learning model. So that will obviously problem to problem वो change होंगे, लेकिन जो इनपुट्स आप प्रोवाइड करते हैं वो फीचर्स कहलाते हैं। और वो फीचर्स किससे मल्टीप्लाई होते हैं? वेट्स के साथ। हर फीचर का अलग अलग वेट होता है और मशीन लर्निंग का पर्पस क्या होता है? वेट्स की ठीक वैल्यूज लर्न करना। और इसका क्या मतलब होता है? वेट्स की ठीक वैल्यूज लर्न करने का मतलब ये होता है कि आप ये डिटरमिन करना चाहते हैं कि किस फीचर की कितनी अहमियत है मैग्नीट्यूड के एतबार से। जी, अगर सर वेट ना हो तो किसी के साथ फिर वेट ना हो यस सर, तो वेट तो किसी के साथ भी नहीं होता। वेट तो प्योरली हम एसोसिएट करते हैं। अगर सर हम एक किसी वैल्यू को ना एसोसिएट करें तो फिर सर लाइक लुक फॉर एग्जांपल, अभी जब हमने पहली बार ग्रेडियंट डिसेंट को कहा था कि हम रन करते हैं तो हमने कहा था शुरू में तो हमारे पास वेट्स की कोई वैल्यू नहीं है तो क्या करें? हमने कहा सबको जीरो रख लेते हैं। जीरो रखने का क्या मतलब है? हम कह रहे हैं कि नहीं, ना सिर्फ ये कि इसका वेट नहीं है, ये फीचर ही नहीं है। जब w जीरो कर देंगे आप तो उसके रिस्पेक्टिव x भी जीरो हो जाएगा, राइट? सो आप आइटरेटिवली लर्न करते हैं कि अच्छा इसको क्या अहमियत दी जानी चाहिए। आपको पता नहीं होता कि क्या है, यही तो आपने लर्न करना होता है। ओके, सो ग्रेडियंट डिसेंट को एक नंबर ऑफ इटरेशन ना देंगे वो ना चले, तो ऐसी कौन सी कंडीशन लगाएंगे वो मिनिमम जब लोकल मिनट पहुंचने को तो पहुंच जाए? अगर आप लाइक मिसाल के तौर पे देखें, किसी भी चीज के ऊपर कोई ना कोई टेंजिबल कंडीशन तो होगी। अनकंडीशनली तो कोई भी चीज नहीं हो सकती। इट इज पॉसिबल कि मैं तमाम पॉसिबल चीजें आपके सामने नरेट ना कर सकूं, लेकिन मिसाल के तौर पे ओके स्लोप हैज बिकम जीरो,
If the slope is 0, stop there. One thing, right? Another thing, पिछली iteration में जितनी improvement आई थी उसके comparison में अब कितनी आई है? अगर ये marginally बहुत ही थोड़ी improvement है, stop here. It's not really making any difference now. There can be like lots of things. You will get to see these things in practice as well if you get to do machine learning. So let's talk about a bit of feature scaling now. Again, if you look at this example, जहाँ हम for example house price prediction कर रहे थे और हमारे पास फर्ज करें कि x1 है size of the house in square feet और x2 है number of bedrooms, right? अच्छा, अब फर्ज करेंगे हमारे पास एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल है, हमारे पास एक घर के मुताबिक डेटा है जिसमें घर का साइज है 2000 स्क्वायर फीट और उसमें बेडरूम्स हैं 5 और उसकी कीमत है तकरीबन $5 लाख, राइट? तो हमारे पास x1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है और y की वैल्यू भी है, ठीक है? अच्छा, अब जाहिर है कि मशीन लर्निंग का काम तो वही है जो हमेशा वही रहेगा कि वो वेट्स की ठीक वैल्यूज लर्न करे और वो वेट्स की वैल्यूज ठीक करने का मतलब क्या है कि वो कॉस्ट को मिनिमाइज करती हो, प्रेडिक्टेड वैल्यू के करीब से करीब जाती हो एक्चुअल वैल्यू के, ठीक है? अच्छा, फर्ज करें हम W1 और W2 की वैल्यूज के बारे में कुछ बात करते हैं। हम कहते हैं फर्ज करें हम W1 को 50 रखते हैं और W2 को 0.1 रखते हैं और B को फर्ज करें 50 रखते हैं। ये बिल्कुल फर्जी वैल्यूज है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि अच्छी वैल्यूज है बुरी वैल्यूज है कहां से आएंगे, ये फर्ज की गई वैल्यूज है। अगर हम ये वैल्यूज इस्तेमाल करें और इसकी बेस पे हम प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ प्राइस निकालें, हम इसको प्राइस हैट कह देते हैं जिसे हम आमतौर पे वाई हैट कहते हैं। अगर हम ये वैल्यू कंप्यूट करें तो दिस विल बी 50 टाइम्स 2000, राइट, प्लस 0.1 टाइम्स 5, W1 x1 से मल्टीप्लाई होगा और W2 x2 से मल्टीप्लाई होगा और फिर उसमें 20 B ऐड हो जाएगा, राइट? अच्छा, अब जब आप ये कंप्यूटेशन करते हैं, आप जब इस फिगर को कैलकुलेट करते हैं तो ये काफी बड़ी फिगर आती है। अब आपके जो घर था उसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो $5 लाख है और ये तकरीबन आपके पास 1 बिलियन के करीब वैल्यू आ गई, 500,000 वर्सेस $1 बिलियन। तो हमने नेकेड आई से हम ये देख सकते हैं कि ये जो W1 और W2 की वैल्यूज और B की वैल्यूज हमने यहाँ पे ली हैं, ये काफी बुरा मॉडल फिट कर रही हैं। इनकी बेसिस के ऊपर जो प्रेडिक्टेड वैल्यू आई है वो एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज्यादा दूर है। So the cost function will be very big. One more thing here that I would like to mention, दो टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं, एक कॉस्ट फंक्शन और एक लॉस फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन एंड लॉस फंक्शन, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन टू? दोनों सेम ही है। इन अ वे यस, बट आमतौर पर अगर हम सिर्फ एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल का लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम इसे लॉस फंक्शन कहते हैं, और अगर हमने तमाम ट्रेनिंग एग्जांपल्स का लॉस कैलकुलेट करके उसकी कॉस्ट निकाली है व्हिच इज मीन एज वेल, तो उसको हम कॉस्ट फंक्शन कह देते हैं। सो वन ट्रेनिंग एग्जांपल लॉस, द होल set data set all training examples and then taking the square and sum and mean cost function, right? Okay, अब यहाँ पे जो लॉस की वैल्यू वो बहुत बड़ी है, सो दैट मीन्स कि ये जो वैल्यूज है पैरामीटर्स की W1, W2 और B, ये कोई अच्छा मॉडल फिट नहीं कर रहे। अच्छा चलिए फर्ज करें हम कुछ डिफरेंट वैल्यूज ट्राई करते हैं। हम कहते हैं नहीं, W1 की वैल्यू रखते हैं 0.1, W2 की वैल्यू रखते हैं 50 और B की वैल्यू रखते हैं 50। B की वैल्यू हमने चेंज नहीं की। अगर आप यहाँ देखें तो W1 और W2 की वैल्यूज हमने स्वैप कर दी हैं। जो वैल्यू यहाँ W1 की थी वो W2 को दे दी और जो वैल्यू यहाँ W2 की थी वो W1 को दे दी। अच्छा, अब इसकी बेसिस के ऊपर अगर आप मॉडल फिट करें तो इट टर्न्स आउट कि आपकी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ प्राइस आई है वो $5 लाख है, which like is in a way generally speaking very close to the actual value, in fact exactly that, right?
हम चाहते हैं कि ये क्लोज से क्लोज आए, तो ये क्लोज से क्लोज है, बल्कि इनफैक्ट इस सिचुएशन में तो एग्जैक्टली वही वैल्यू है। तो हमारी प्रेडिक्शन इस कॉस्ट में, इस केस में हमारा लॉस की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, राइट? दैट मींस वी हैव गॉट वेरी गुड वैल्यूज फॉर पैरामीटर्स हियर, राइट? द पॉइंट दैट वी वांट टू मेक हियर इज कि अगर आप x1 को देखें तो x1 की वैल्यूज की रेंज काफी बड़ी है। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई डेटा सेट है, उसमें सबसे छोटा हाउस जो हमारे पास है वो 300 स्क्वायर फीट का है और जो सबसे बड़ा है वो 2000 स्क्वायर फीट का है। इसकी रेंज काफी बड़ी है, लाइक 1700 इसकी रेंज है, राइट? ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप बेडरूम्स को देखें तो बेडरूम्स की वैल्यूज है 0 से लेके 5 तक, लाइक यू वुड हैव स्टूडियो अपार्टमेंट एंड यू कुड हैव अ 5 बेड हाउस एज वेल। ये रेंज है, ये रेंज काफी छोटी है, राइट? अब इसको देखकर हमें यह समझ आ जाती है कि जो आप वेट एसोसिएट करेंगे वो मुमकिना तौर पर इसके साथ जो वेट एसोसिएट करेंगे उसकी वैल्यू थोड़ी छोटी होगी, क्योंकि ये फीचर काफी बड़ा है। तो इसके 1 यूनिट तब्दीली से उतनी बड़ी तब्दीली नहीं आनी चाहिए आपकी वैल्यू के अंदर, जबकि बेडरूम की रेंज काफी स्मॉल है और एक बेडरूम के एडिशन से आपकी कॉस्ट में काफी वैल्यू में तब्दीली आनी चाहिए। अब हम इंट्यूटिवली इस बात को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका जो वेट होगा x1 का, उसकी वैल्यू जरा बड़ी होगी और जो इसका उसकी वैल्यू थोड़ी छोटी होगी, क्योंकि वो फीचर खुद काफी बड़ा है। और जो ये वाला फीचर है चूंकि काफी छोटी रेंज में है तो इसकी वैल्यू कदरे बड़ी होगी। और ये हमने यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करके भी देखा कि अच्छा W1 अगर हम 0.1 रखें और W2 50 रखें तो हम काफी मुनासिब प्रेडिक्शन कर पाते हैं। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही वो वैल्यूज है W1 और W2 की जिसके लिए ठीक वैल्यू आएगी, थोड़ी मुख्तलिफ भी हो सकती है। जैसे अगर आपको याद हो तो कॉन्टोर प्लॉट के अंदर कॉन्टोर में जो एक सर्कल है वो पूरे का पूरा एक ही कॉस्ट की वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, अगर जिस पर W's और B's की वैल्यूज तब्दील होती हैं, राइट? ओके, नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? इस बात की सिग्निफिकेंस क्या है कि एक फीचर की वैल्यू की रेंज बड़ी होना या छोटी होना, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये बात क्यों अहमियत रखती है? इट्स लाइक अभी जो हमने चीज देखी उसके मुताबिक हमने देखा कि साइज इन स्क्वायर फीट जो फीचर था उसकी वैल्यू की रेंज काफी बड़ी थी और उसका पैरामीटर हमने छोटा चूज किया था, which was working for us. Similarly, जो नंबर ऑफ बेडरूम्स है उसकी फीचर की वैल्यू की रेंज छोटी है और अकॉर्डिंगली हमें पैरामीटर की वैल्यू जरा बड़ी चूज करनी पड़ी थी। अब अगर आप अपने कॉन्टोर प्लॉट को देखें, जो कॉन्टोर प्लॉट आप बनाते हैं तो कॉन्टोर प्लॉट इज बेसिकली कि जो आपने 3D में प्लॉट बनाया था, आपने उसका एक स्लाइस लिया है, तो कॉन्टोर प्लॉट में जो एक ओवल या एक सर्कल आप देख रहे होते हैं वो कॉस्ट की एक वैल्यू को इंडिकेट कर रहा होता है, राइट? और उसके अगेंस्ट W और B's की वैल्यूज तब्दील हो रही होती है, W1 W2 या व्हाटएवर जो भी आप कह रहे हैं, ठीक है? सो अब अगर हम इन फीचर्स को स्कैटर प्लॉट पे देखें तो हमारे पास साइज इन स्क्वायर फीट की रेंज काफी बड़ी है, यानी 300 से लेकर 2000 तक, राइट? लेकिन नंबर ऑफ बेडरूम्स की वैल्यूज जो है वो काफी लिमिटेड है, सिर्फ 0 से लेकर 5 तक। तो हमारा जो डेटा है वो x एक्सिस के अलोंग तो काफी स्प्रेड है, लेकिन y एक्सिस के अलोंग काफी महदूद है, राइट? ओके, फेयर इनफ, डेटा ऐसा हो सकता है। अब इससे इंपैक्ट क्या आएगा? इससे इंपैक्ट ये आएगा कि अगर आप यहां x एक्सिस पे लाइक ये थे फीचर्स, अब हम यहां ले रहे हैं कॉस्ट फंक्शन को कॉन्टूर प्लॉट के तौर पे ले रहे हैं और हम कहते हैं कि हम W1 को x एक्सिस पे लेते हैं और W2 को y एक्सिस पे लेते हैं, यानी जो वेट है फीचर 1 का वो x एक्सिस पे है और जो वेट है फीचर 2 का वो y एक्सिस पे है। अच्छा, अब जो साइज इन स्क्वायर फीट है उसके वेट की वैल्यू तो हम आमतौर पे काफी छोटी रखते हैं, ठीक है? यानी जो हमने अभी वैल्यू ट्राई की थी जो हमारे लिए काम कर रही थी, दैट वाज ओनली 0.1। व्हाट वी एक्सपेक्ट इज कि अच्छा ये 0 से 1 के दरमियान कोई वैल्यू है जिसके अगेंस्ट अपना फंक्शन इवैल्यूएट कर रहे हैं एक्सपेक्टेडली। सिमिलरली जो हमारे पास वैल्यू थी नंबर ऑफ बेडरूम्स की, उसका जो वेट था
वो हमारे पास जो हमने पिक किया था वो 50 था। फर्स्ट करें हम 0 या 10